Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are doing fine. We are learning about Indian architecture, sculpture and pottery, and I have divided Indian architecture into three parts: ancient India, medieval India and modern India. We have already covered the Harappan art in the ancient India section. Now today in this video I am going to cover the modern art. In the 6th century BC starts the second urbanization. तो second urbanization का जन्म हुआ 6th century BC में, and there were 16 महाजनपद at that time. There were 16 Mahajanpad at that time. These are the names of the Mahajanpad. Take a look at it. Kamboj, Gandhar, Kuru, Panchal, Kosal, Mal, Vraji, Matsya, Surasen, Vats, Kasi, Magad, Ang, Avanti, Chedi and Asmak. These were the 16 Mahajanpad in the 6th century BC, the second urbanization period. Now these 16 Mahajanpad competed against each other and Magad became victorious, and here starts the Magad Empire. And now many dynasties ruled in the Magad Empire. Starting with the Haryanka dynasty, then comes the Shishupal, then comes the Nand, and then comes the Mauryan dynasty. And the founder of Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya. And under the guidance of Chanakya, he became victorious and he defeated Nanda and becomes the ruler of the founder of the Mauryan dynasty. Now, Mauryan dynasty starts from 321 BCE to 185 BCE, and this was the extent of Mauryan dynasty. You have heard the popular name of Mauryan kings like Ashoka, Chandragupta Maurya, etc. ठीक है. Now here start the modern art and architecture. I have divided modern art and architecture into two parts: the court art and the popular art. Court art basically means the initiative by the kings, and popular art means the initiative by the individual group of people or individual. The initiative by individual initiative is called popular art. So I have divided modern art and architecture into two: court art and popular art, and I have further divided court art into three: palaces, pillars and stupas, and popular art into three: caves, pottery and sculpture. Let's start with the court art and let's start with the palaces. Now palaces are made, principal material that were used in the palaces was wood. तो wood का बहुत इस्तेमाल किया गया पैलेसेस बनाने के लिए. एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र में हमारा जो कैपिटल था उस समय का, वहां का पैलेस देखेंगे, या अशोक का पैलेस देखेंगे कुमराहार में. दैट वाज अ 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर. तो कुछ इस प्रकार दिखता है. अभी तो वहां पर कुछ है नहीं. और नोट कीजिएगा ये चीज कि मेगास्थनीज ने पैलेसेस को डिस्क्राइब किया था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड. तो मेगास्थनीज हैज डिस्क्राइब्ड द पैलेसेस एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड. तो बस केवल इतना ही पढ़ना है पैलेसेस में. लेट्स कम टू द पिलर. तो द प्रिंसिपल मटेरियल दैट वर यूज्ड इन द पिलर वाज चुनार सैंडस्टोन. तो चुनार सैंडस्टोन का यूज किया. ऑब्जेक्टिव क्या था कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना है, और जो किंग के ऑर्डर्स होते थे उनको भी स्क्राइब्ड किया जाता था ताकि किंग अपने लोगों से डायरेक्टली बात कर सके, तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो सके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिलर. तो पिलर का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता था. जो सैफ्ट होता था, लॉन्ग सैफ्ट होता था, वो मोनोलिथ से बना होता था. मोनोलिथ इज बेसिकली केवल एक स्टोन से बनाया गया, यानी ब्रिक्स से बनाया नहीं गया. एक स्टोन को कार्व्ड आउट करके पूरा एक शेफ्ट बनाया गया. तो ये मोनोलिथ स्ट्रक्चर होता था. दूसरा, उसके ऊपर एक कैपिटल होता था. या तो ये लोटस शेप्ड में हो सकता था या तो ये बेल शेप्ड में हो सकता था. तो कैपिटल दो शेप में हो सकता था. उसके ऊपर होता था अबैकस. अबैकस सर्कुलर भी हो सकता था एंड रेक्टेंगुलर भी हो सकता था. उसके ऊपर एक होता था एनिमल फिगर. दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पिलर एट दैट टाइम. तो मॉडर्न टाइम के जो पिलर थे उसका ये स्ट्रक्चर हुआ करता था. और ये जो मैंने आपको पिलर दिखाया ये वैशाली में है. दूसरा एग्जांपल क्या है पिलर्स का, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़ पिलर है चंपारण में. तो चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ पिलर है. कुछ इस प्रकार से वो दिखता है. इसको अगर जूम करें तो आप यहाँ पर इनको ऐसे भी देख सकते हैं. नाउ इसकी बात करें तो चंपारण कहाँ पर है? इंडिया के मैप में चंपारण यहाँ पर है, और बिहार के मैप में आप देखें तो चंपारण यहाँ पर है. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ चंपारण. तो लौरिया नंदनगढ़ पिलर को याद रखिएगा. और एक पिलर को बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का पिलर जो कि वाराणसी में है, वो पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं से हमारा नेशनल एम्बलम भी आता है. और नेशनल एम्बलम में याद रखिएगा जो ये अबैकस है उसमें चार जानवर हैं: बुल, एलिफेंट, और ये आप देख रहे होंगे हॉर्स, और चौथा था लायन. और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते हमने लिया है मुंडक उपनिषद से, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है. और ये क्रिएट किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट सरमन जब बुद्धा का हुआ था, जिसे हम बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन. धम्मा चक्र परिवर्तन इसको बोलते हैं. तो ये चीजें आप याद रखिएगा. क्या डिफरेंस था अशोका पिलर और एक्कीमेनियन पिलर्स में? कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारा शेफ्ट होता था अशोका पिलर में वो मोनोलिथ से बना होता था. दे वर इंस्क्राइब्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन मेनली फ्रॉम द चुनार सैंडस्टोन, जैसे कि मैंने आपको बताया.
अगर आप एक्यूमेनियन पिलर्स की बात करें तो पिलर्स जो होते थे वेरियस पीस ऑफ सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर से बने होते थे, यानी किसी एक स्टोन का यूज नहीं किया है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एक्यूमेनियन एंड अशोकन पिलर में। दूसरा, लोकेशन की बात करें तो जो अशोक पिलर थे वो इंडिपेंडेंटली भी इरेक्ट थे, लेकिन जो एक्यूमेनियन पिलर्स थे दे वर जनरली अटैच टू द स्टेट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है अशोकन पिलर में और एक्यूमेनियन पिलर्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट पिलर्स। लेट्स कम टू द स्तूपा। नाउ स्तूपा कम टू द क्लाइमेक्स इन द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में स्तूपा क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, अपने एकदम हाई पीक पर पहुंच गया। और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था स्तूपा का। स्तूपा में क्या होता था, जैसे कि बुद्धा अगर डेड हो गए हैं तो उनके जो रिलिक्स होते थे वो छोटा छोटा करके इनमें रख दिया जाता था, ताकि इसको सैक्रेड प्लेस माना जाए और यहाँ पर लोग आके मेडिटेशन कर सकें। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर जो है ये छत्राज हैं, ये है यस्ती, और इसके नीचे है ये हर्मिका। और इसके बाद ये स्तूपा जो होता था डोम शेप का होता था। जो गेट्स होते थे उसको हम तोरण बोलते थे, तो ईस्ट तोराना, वेस्ट तोराना एंड साउथ एंड नॉर्थ तोराना। ठीक है, स्टोन के फेंस होते थे, डबल स्टेयर वे थी, मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी, और ये चढ़ने के बाद, सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये प्रदक्षिणा पथ था। प्रदक्षिणा पथ का मतलब कि वो गोल सा चक्कर जिसमें हम गोल 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 गोल, अभी भी हिंदू में कई टेम्पल्स में हम गोल गोल घूमते हैं, है ना, तो परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए हमने इसको बोला प्रदक्षिणा पथ भी वहां पर था। इसे हम एम्बुलेटरी पैसेज वे भी बोलते हैं। तो दिस वाज द होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपास। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कोर था स्तूपा का दैट वाज मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, outer surface was made of burnt bricks above which the plaster was applied, and Medhi and Toran was very much decorated with the wooden sculptures। तो वुडन स्कल्पचर से वो अच्छे से डेकोरेट होते थे। एग्जाम्पल देखें अगर स्तूपास का, तो फेमस एग्जाम्पल है सांची स्तूपा इन द मध्य प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं, वेरी मच डेकोरेटेड गेट्स, सांची स्तूपा एट मध्य प्रदेश। आप ये एग्जाम्पल, सांची कहाँ पर है, ये अगर इंडिया के मैप में देखें तो सांची यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, और अगर मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो यहाँ पर है सांची। तो मैंने सब कुछ आपके लिए यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, सांची स्तूपा। सेकंड एग्जाम्पल इज पिपरवाहा स्तूपा इन यूपी। दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ पिपरवाहा स्तूपा इन यूपी। तो मोस्ट फेमस जो है वो सांची स्तूपा है, एंड ओल्डेस्ट स्तूपा जो है वो है पिपरवाहा स्तूपा इन यूपी। नाउ यूपी में अगर पिपरवाहा स्तूपा की आप पोजीशन देखें तो इंडिया के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, और यूपी के मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एंड द लोकेशन ऑफ 9 स्तूपा। तो बुद्धा के रिलिक्स को 9 जगह पर रखा गया, उसको बोला गया 9 स्तूपास, एंड दे वर बिल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जाहिर सी बात है। और उनकी लोकेशन थी राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अल्लाकप्पा, रामग्रामा, वेठापिड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपालीवना, मे बी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, पिपलीवना बोल लीजिए आप। तो दीज वर द 9 लोकेशन ऑफ स्तूपास that having the relics of Buddha. So this is all about stupa. Now court art ends here with the stupa. तो तीन ही चीजें थी, palaces, pillars and stupa. Let's come to the popular art. It was the individual initiative. Now caves, pottery and sculpture. Let's start with caves. What is the uses of caves? तो गुफाएं क्यों बनाई गई उस समय? विहारास के लिए। विहारास का मतलब होता है कि वहां पर लिविंग के लिए, रहने के लिए। एक होते थे चैत्या और एक होते थे विहारा। विहारा मतलब जहां पर लोग रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग, जैन मॉन्ग और या ब्राह्मणिकल जो संत थे वो वहां पर रहते थे। और जो चैत्यास होते थे वहां पर वो प्रेइंग हॉल्स थे, वहां पर पूजा की जाती थी। ठीक है, तो विहारा जो बनाए गए मौर्यन टाइम पे वो बेसिकली द लिविंग क्वार्टर्स ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो केवल जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, विहारास के लिए बनाए गए थे केव्स। स्ट्रक्चर था हाईली पॉलिश्ड फिनिश ऑफ इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज। तो गेटवेज थे बहुत डेकोरेटिव होते थे, और जो पॉलिश थी इंटीरियर वॉल्स की वो हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे। एग्जाम्पल है बराबर केव्स ऑफ बिहार। तो ये बराबर केव्स देख रहे हैं बिहार का, कितना बढ़िया डेकोरेट किया गया गेट को। तो गेट वर वेरी मच डेकोरेटेड एंड द वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स वर हाईली पॉलिश्ड। नाउ सेकंड एग्जांपल है नागार्जुनी केव्स इन बिहार। तो दोनों बिहार में है, बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स। ठीक है, तो बराबर एंड नागार्जुनी केव्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। तो अशोका के टाइम पे ये बनाए गए थे 3rd सेंचुरी BC में। तो ये याद रखिएगा।
ना अगर पॉटरी की बात करते हैं तो पॉटरी भी अपने क्लाइमेक्स में पहुंची थी मॉडर्न पीरियड के समय पे। तो क्लाइमेक्स पे दो चीजें पहुंची मॉडर्न पीरियड में, पहला था स्तूपा एंड दूसरी थी पॉटरी। हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी जो पहुंची थी वो है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे हम NBPW भी बोलते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी थी। इसमें क्या होता था, ब्लैक पेंट होता था एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश होता था। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं इसका, ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश एंड दे वर यूज्ड एज लग्जरी आइटम्स। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी पहुंची थी मॉडर्न पीरियड में। अगर स्कल्पचर की बात करें तो व्हाट वाज द यूसेस ऑफ दीज स्कल्पचर, दे आर यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ मेदी एंड तोरानास इन द स्तूपा। तो स्तूपा में जो तोरानास थे, मेदी थी, वो गेट जिसे हम तोरण बोलते हैं ना, उनके डेकोरेशन के लिए यूज की जाती थी। एंड टू फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड वर यक्ष एंड यक्षी। तो यक्ष और यक्षी थी, यक्षिणी भी बोलते हैं, दो फेमस स्कल्पचर थे मॉडर्न पीरियड के, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप फॉर ऑल रीजन, ऐसा नहीं है कि केवल बुद्धिस्ट या हिंदुइज्म के लोग इसको फॉलो करते थे, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सभी धर्मों के लोग यक्ष एंड यक्षी को मानते थे। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्ष जो है वो हमें मिल सकता है तमिल बुक में। तमिल लिटरेचर मैंने आपको पढ़ाया, लिटरेचर मैंने पूरा पढ़ाया आपको, उसमें मैंने आपको सीला पड्डीकरम बताई थी इलांगो अडीगल की, दैट वाज द तमिल टेक्स्ट। उसमें पहला अर्लीस्ट मेंशन है यक्ष का, और कुछ इस प्रकार से यक्षिणी का ये आप देख सकते हैं, और ये दोनों यक्ष एंड यक्षिणी को आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न पीरियड। Now this is all about what you have to learn about modern art and architecture. तो कोर्ट इनिशिएटिव एंड पॉपुलर इनिशिएटिव। कोर्ट इनिशिएटिव में पैलेसेस को, पिलर्स को और स्तूपास में इतना ही पढ़ना है। कौन क्लाइमेक्स पे पहुंचा था, स्तूपा एंड पॉटरी क्लाइमेक्स पे पहुंची थी। और हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी क्या थी, नंदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इतनी ही चीजें पढ़नी है और याद करके जानी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे केव्स का एग्जाम्पल है, बराबर केव्स किस लिए यूज होती थी, विहारास के लिए, चैत्यास के लिए नहीं। मॉडर्न पीरियड में चैत्यास के लिए यूज नहीं होती थी, केवल विहारास के लिए। कौन रहता था वहां पर, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क रहते थे। तो वहां पर 6th सेंचुरी BC में आपको पता होगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का बर्थ हुआ। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।